صوبے کا حق لے کر رہیں گے، غیر قانونی مائننگ کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کہتے ہیں غیر قانونی مائننگ کے خلاف سخت قانون لا رہے ہیں۔ صوبے کے ایک ایک ذرے کی حفاظت کرنا ہمارا فرض۔ NFC کو ریوائز نہیں کرنے دیں گے، ہم اپنا حق مانگیں گے، صوبے کی بہتری کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ بانی PTI مجھ سے مطمئن، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، بہت جلد خوشخبری ملے گی۔ ہر تاریکی کے بعد اجالا آتا ہے، پارٹی میں اختلافات کو حل کر لیں گے۔ اس طریقے سے ایک قانون تمام بھیجا گیا کہ اتنے دنوں میں اپنی اپنی اسمبلیوں سے اس کو پاس کراؤ۔ وفاقی مملکت میں قانون سازی کا کہ ڈکٹیشن بھیجی جائے صوبائی اسمبلیوں کو، تو جس طرح سے یہ قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ سراسر وفاق کی جو روح ہے اس کے منافی ہے۔ ہم اس قانون کو بغور دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ضخیم قسم کا قانون ہے جس سے صوبے کی جو معدنی دولت ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ نہیں، لیگل کمیٹی کو نہیں بھیجا گیا، یہ صوبائی حکومت کو بھیجا گیا ہے۔ بات کریں گے قومی اسمبلی اجلاس کی، تو قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن ایک بار پھر آمنے سامنے، ایک دوسرے کو شدید تنقید کا نشانہ بنا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی تقریر کا جواب وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے دیا۔ PTI ارکان نے بازوں پر کالی پٹیاں باندھ کر اجلاس میں شرکت کی، جبکہ 9 اپریل کے حوالے سے پوسٹر بھی ایوان میں لے آیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا 3 سال پہلے آج کے دن رجیم چینج آپریشن لایا گیا، یہاں انجینئر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹا گیا، پیکا ایکٹ کو ویپنائز کیا گیا۔ انہوں نے کہا جعفر ایکسپریس پر حملے کی پہلے بھی مذمت کی، آج بھی مذمت کرتا ہوں۔ عمر ایوب کی آصف زرداری سے متعلق گفتگو پر پیپلز پارٹی ارکان نے شور شرابہ کیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے جواب دیتے ہوئے کہا 75 سال میں اگر کوئی آئینی رجیم چینج تھی تو وہ 9 اپریل 2022 کو ہی۔ طلال چودھری نے کہا یہ باجوہ کرتے ہیں، یہ وہی باجوہ ہے جسے یہ کہتے تھے قوم کا باپ ہے، یہ اسے لائف ٹائم ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میر کی ملاقات۔ وزیراعظم نے امریکی وفد کے منرل انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کا خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں وسیع استعداد موجود ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایرک میر سینئر بیورو آفیشل اور قائم مقام اسسٹنٹ سیکرٹری بیورو آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئر US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی قیادت میں امریکی وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کے لیے پاکستان کا دورہ کرا ہے۔ وزیراعظم نے فورم میں امریکی شرکت کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکی کمپنیوں کو اس ترجیحی شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے مستفید ہونا چاہیے۔ دو طرفہ تناظر اور علاقائی امن و سلامتی کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکہ کے اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات، جس کی قیادت سینئر بیوروکریٹ ایرک میر نے کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان معدنیات کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ ایرک میر نے کہا امریکی انتظامیہ پاکستان کے ساتھ اس شعبے میں ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے گہری دلچسپی رکھتی ہے۔ امریکی وفد نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پر غور کیا اور دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات مستحکم کرنے پر زور دیا۔ ملاقات میں عملی پیش رفت اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو، جبکہ حکومتی اور نجی شعبے کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسلام آباد میں 2 روزہ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم اختتام پذیر ہو گیا۔ OGDCL کے مطابق فورم انعقاد کا مقصد معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا تھا، جہاں سرمایہ کاروں کو پاکستان کے معدنی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے مواقع فراہم کیے گئے۔ OGDCL کے مطابق فورم میں 300 سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی ماہرین شریک ہوئے۔ سرمایہ کار، حکومتی نمائندگان، تعلیمی اداروں سے افراد نے بھی شرکت کی۔ فورم میں ریکوڈیک پروجیکٹ پر خصوصی سیشن میں توجہ مبذول کرائی گئی، جدید ٹیکنالوجی، ماحولیاتی دوست طریقہ کار اور مقامی ترقی پر روشنی ڈالی گئی۔ نیشنل مرینر ہارمونائزیشن فریم ورک 2025 کا اجرا۔ فریم ورک سرمایہ کار دوست اصلاحات پر مبنی۔ وزیراعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے فورم میں شرکت کی۔ OGDCL نے اعلان کیا کہ PMIF 26 اگلے سال دوبارہ منعقد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سروسز ہسپتال کا دورہ۔ مریم نواز نے ہسپتال کے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ اہم خبر ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ہسپتال کے وارڈز کا معائنہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ جس نے جو کرنا ہے کر لیں، میری ترجیح عوام کو ریلیف دینا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں زیر سماعت فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے۔ اگر کسی کو فیئر ٹرائل کا حق دے رہے ہیں، اس میں مسئلہ کیا؟ ادارہ خود شکایت کنندہ ہے، وہ کیسے کیس سن سکتا ہے؟ کیا وفاق اور صوبوں کو اپنی عدالتوں پر اعتماد نہیں؟ اگر عدالتیں ہی ختم ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ بشارت راجہ کی رپورٹ دیکھیے۔
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब कोर्ट मार्शल ट्रायल होता है तो इसका पूरा तरीकाकार है। अगर किसी को सजाए मौत होती है तो इस पर उस वक्त तक अमल नहीं होता जब तक अपील पर फैसला न हो जाए। कुलभूषण केस में एक मसला और था, सेक्शन 3 में फेयर ट्रायल और वकील का हक है। अटॉर्नी जनरल ने कहा 18वीं तरमीम के बाद जब फुल कोर्ट में ये मामला आया तो अदालत ने ही 3 ऑप्शन दिए थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, वो 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, अपील का हक है या नहीं ये बताएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा उस वक्त हमारा फोकस अपील पर नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं तो इसमें मसला क्या है? इदारा खुद शिकायत करिंदा है, वो कैसे केस सुन सकता है? क्या विफाक और सूबों को अपनी अदालतों पर एतमाद नहीं है? हम पर तो लोग फैसलों की वजह से सिर्फ 50% एतमाद करते हैं। अगर अदालतें ही खत्म हो गई तो फिर क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जुडिशल सिस्टम का हिस्सा आप भी हैं, मैं भी हूं, हमने मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने वालों को तो कानून शहादत का इल्म ही नहीं होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में शवाहिद को गलत भी पढ़ा जा सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आप कैसे इंसाफ और शफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं? हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए थी। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, बात ये नहीं कि जुर्म कितना संगीन है, हो सकता है कि सख्त और खौफनाक जुर्म हो। अगर दहशतगर्द भी जुर्म करता है तो क्या बुनियादी हुकूक होते हैं या नहीं? लाहौर की सादे दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी पुलिस पर बरहम। शाह महमूद कुरैशी की पुलिस अफसरान के साथ तकरार। समाअत के बाद शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ले जाना चाहती थी, लेकिन वो लोगों से मुलाकात के लिए रुकना चाहते थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जो आज हमें हथकड़ियां लगा रहे हैं, कल ये हमें सल्यूट मारेंगे। आप मुझे जाने पर मजबूर नहीं कर सकते। अगर मैं कुछ देर यहाँ रुक जाता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में पानी की संगीन सूरत हाल पर डीजी पीटीएमए को वाटर इमरजेंसी के नफाज के लिए पंजाब काबीना को समरी भिजवाने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम के तहरीरी फैसले के मुताबिक पीटीएमए की रिपोर्ट में मेट ऑफिस की जानिब से खुश्क साली के अलर्ट और दरियाओं में पानी की शदीद कमी की निशानदही की गई। अदालत ने जेर जमीन पानी की कमी को खतरनाक करार देते हुए फौरी इकदाम की जरूरत पर जोर दिया। तमाम इदारों के बाहमी कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी की तश्कील और रिपोर्टिंग के लिए हिदायत। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को पाकिस्तान के बचाव के इकदाम का पाबंद बनाया गया, जबकि पाइप से पानी के इस्तेमाल और गाड़ियां धोने पर पाबंदी और जुर्माने जेर गौर। केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी। दो 2005 के जलजिले से मुतासरा स्कूलों की बहाली के केस की समाअत सेक्रेटरी प्लानिंग एंड वर्क्स खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को बताया। अब तक 1 अरब 23 करोड़ रुपए के फंड्स जारी हो चुके, मगर 49 स्कूलों की बहाली का काम ताहाल बाकी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा में 2005 के जलजिले से मुतासर स्कूलों की बहाली के मुतालिक केस की समाअत की। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, बच्चे आज भी दरख्तों के नीचे तालीम हासिल करें, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल। सेक्रेटरी तालीम ने फंड्स की किल्लत का शिकवा किया। सेक्रेटरी खजाना का कहना था फंड 4 अप्रैल को काबीना की मंजूरी के बाद जारी करती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, स्कूलों की बहाली के लिए डबल या 3 शिफ्टों में काम क्यों नहीं किया जाता, जब अंडरपास या बाईपास तमीर करते वक्त किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों की मुकम्मल बहाली का प्लान तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। आइस्को की नेपरा में मल्टी ईयर टैरिफ के सालाना एडजस्टमेंट की समाअत। आइस्को ने 9 रुपए का इजाफा मांग लिया। फिक्स चार्जेस में इजाफा भी दरख्वास्त में शामिल। आइस्को ने नेट मीटरिंग के हवाले से और 3 फेज पीक आवर में इजाफे की तजवीज़ की। नेपरा अथॉरिटी आइस्को की तरफ से दी जाने वाली तफसीलात पर बरहम हो गई। आइस्को चीफ से पूछे गए सवाल पर गैर तसलीबख्श जवाबात। मेंबर सिंध रफीक अहमद शेख ने आइस्को की दोबारा समाज रखने की सिफारिश कर दी। मेंबर नेपरा रफीक शेख कहते हैं आइस्को चीफ की नाहली पर फौरी तौर पर उन्हें ओहदे से हटा दिया जाए। सीईओ आइस्को इतनी बड़ी कंपनी चलाने के अहल नहीं, आइस्को पहले ही निजकारी की लिस्ट में है और ऊपर से ये नाहली कैसे बर्दाश्त होगी? हमें आइस्को सार्फिन का ख्याल, लेकिन आइस्को आला सतह की इंतजामिया की नाहली पर अफसोस है। वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने दौरे मर्दान के दौरे के दौरान अरबों रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। इस दौरान वज़ीर आला ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन समेत आबनोशी, ज़राअत, तालीम और दीगर मनसूबों का इफ्तिताह किया। 363 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले मनसूबे में क्रिकेट ग्राउंड, वॉकिंग ट्रैक, क्रिकेट अकेडमी, खुसूसी अफराद के लिए ग्राउंड, गार्ड रूम, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर जदीद सहूलियात शामिल। इसी सिलसिले में 335 मिलियन रुपए की लागत से तामीर होने वाला जिमनेजियम भी मुकम्मल कर लिया गया।
वज़ीर आला ने मर्दान में 200 बिस्तर पर मुश्तमिल शहीद बेनज़ीर भुट्टो चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह किया। उधर जिला स्वाबी में कुंडल डैम के ज़ेली मंसूबे भी मुकम्मल हो गए। 30,000 अफराद को पानी की फराहमी मुमकिन होगी। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, हर हल्के को आइंदा बजट में 2-2 अरब रुपए के फंड्स दिए जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, दुनिया शोबा सेहत में जिद्दत ला रही है और हमारे सूबे में आज भी अवाम इलाज मुआलजे की नाक़िस सूरत हाल पर सरापा एहतजाज। बेहतरीन निज़ाम सेहत के लिए आबादी के लिहाज से तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। गवर्नर हाउस में मुनक़दा हेल्थ पॉलिसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी ताहाल बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम। सूबे के अस्पतालों में इलाज मुआलजे की नाक़िस सूरत हाल, अद्वियात की कमी जैसे मसाइल ताहाल हल तलब। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए और ऐसी तनकीद को बर्दाश्त भी करना चाहिए। हुकूमत, तिब्बी माहिरीन और अवाम मिलकर कोशिश करें तो जदीद, मुअस्सर और शहरियों की दस्तरस में तिब्बी निज़ाम कायम किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा की सेहत के निज़ाम के लिए एक रोशन सिमत का तयन करेगी। खानेवाल आपस में मजाक करते हुए कजन लड़ पड़े। मामूली तलकलामी पर 3 अफराद ने डंडों से तशद्दुद करके मेहनत कश को मार डाला। थाना सदर के इलाके आर्या नगर का रिहायशी शाहिद जानवरों के लिए चारा लेकर जा रहा था। कजन गुलाम नबी, जुबैर और यासीन मजाक करने लगे। मजाक ही मजाक में मामूली तलकलामी हो गई, जिस पर तीनों ने डंडों से मकतूल शाहिद को तशद्दुद का निशाना बनाया। मकतूल को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लाया गया, जहां पर वो जाँ बहक हो गया। थाना सदर पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया, ताहम मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। सराय आलमगीर में कनाडा पलट फैमिली के घर चोरी की बड़ी वारदात। चोर घर से 80 लाख रुपए मालियत का सोना और नकदी लूट कर फरार। पुलिस का कहना है, वाकया थाना सिटी के इलाके राजा बाजार में पेश आया। चोरों ने घर के ताले तोड़कर घर का सफाया किया। ओवरसीज फैमिली रिश्तेदारों के घर गुजरांवाला गई हुई थी। वाकया पुलिस चौकी से चंद गज के फासले पर पेश आया। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। डीपीओ गुजरात मुस्तनसर अता बाजवा का क्राइम सीन यूनिट के हमरा जाए वकुआ का दौरा, मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी अमल में लाने की हिदायत करते। वफाकी दार हुकूमत के अहम शाहराह इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मुल्का सर्विस रोड खस्ता हाली का शिकार, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, मगर अरसा दराज से सड़क की मुरम्मत या तामीर के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। इस्लामाबाद से इब्रार वली की रिपोर्ट देखिए। टूटा फूटा रोड, जगह जगह गहरे गड्ढे। ये किसी दूर अफ्तादा इलाके की सड़क नहीं, बल्कि शहर इक़्तिदार के मकीनों की सहूलत और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक का बहाव कम करने के लिए बनाया गया सर्विस रोड है। इस सड़क पर गाड़ियों का चलना तो दरकिनार, शहरियों का पैदल चलना भी महाल होता जा रहा है। निकासी आपके नाकिस निज़ाम और बारिश का खड़ा पानी मकीनों के लिए दर्द सर से कम नहीं। शहरी कहते हैं, सर्विस रोड का मकसद मेन रोड पर बोझ कम करना होता है, मगर इसकी खराब हालत बड़ा मसला बन चुकी है। 1.5 साल हुए आने के मंजूरी हो गई है, लाइटें लगेंगी, ये वो कोई कुछ नहीं। हाले हाईवे के साथ पक्का भी हुआ, उस आगे बाकी आज काम शुरू होगा, कल शुरू होगा, कोई काम नहीं हुआ। नाल पार्क का भी उन्होंने क्या कि पार्क बने बच्चों की, वो नहीं। सर्विस रोड का बुरा हाल है, एक पैदल बंदा भी नहीं गुजर सकता है। तो ये मेहरबानी करो आप, तो बाकी जड़े और रोड है गाँव के ऐसे वो बने हुए, बेशक ना चेक कर लो, वो बने, ये रास्ता नहीं बन रहा। ड्राइवर का कहना है कि रोड की खस्ताहाली से गाड़ियां तबाह हो चुकी और ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मुल्का सर्विस रोड की फौरी मुरम्मत की जाए। इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुकर्रीन ने भारत के मसाइल की मसम्मत करते हुए कहा, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए नजरियाती और अमली जहाज जरूरी। भारतीय अफवाज के इनखला कैदियों की रिहाई और 1947 से पहले का दर्जा बहाल करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम, चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और सेनेटर राजा जफरुल हक समेत आल पार्टी हुर्रियत रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए पहले नजरियाती सोच और फिर जिहाद नागुज़ीर है। कश्मीर लिबरेशन सेल में सियासी बेरोजगारों को भर्ती न करना एक नई रिवायत है। बरमला कहता हूँ कि जो कुरान की टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हीं से कामयाबी मिलेगी, और जिहाद की गुफ्तगू करने में और इसको अमली सूरत देने में ना मुझे कोई हिचकिचाहट माजी में थी, ना आज है, और इंशाल्लाह ना मरते दम तक रहेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है कि तमाम सियासी जमातों को कश्मीरियों के लिए किरदार अदा करना होगा। भारत ने हजारों कश्मीरियों को जेलों में डाल रखा है और औरतों और बच्चों पर जुल्म जारी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात हुई, मुझे बहुत खुशी हुई।
शाह गुलाम कादिर साहब ने भी बात की, स्पीकर साहब ने भी बात की, दूसरों ने भी बात की कि आपकी रहनुमाई में आप करें, हम सारे आपके साथ होंगे। तो मैं भी कहता हूं कि आपकी एक लीडिंग रोल है, इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं होने देंगे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार देते हुए कहा कि मोदी की ये आखिरी हुकूमत है और ये बेहतरीन वक्त है कि पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा आलमी सतह पर लड़े। और ये जो बात मोदी की हुई थी, मोदी की आखिरी टर्म है, मेरे ख्याल में वो हिंदुत्व का मामला खत्म हो गया है, वो बिल्कुल फेल हो गए हैं उनकी पॉलिटिक्स, और जो उम्मीदें उनको ट्रंप से थी वो भी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। सेनेटर राजा जफरुल हक ने कहा कि दुनिया में बहुत से लोग इंसानी हुकूक की बुनियाद पर कश्मीरियों का साथ दे रहे हैं, हमें दलेरी से बात करना होगी। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने मुतालबा किया कि कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के मामले को आलमी अदालत में उठाया जाए। हुर्रियत रहनुमा परवेज अहमद की जानिब से करारदाद पेश की गई। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।